Hello, good morning to all my dear students. Now today we are going to start lecture number 3rd of this chapter. This is the part 3 of life process. So student, previous classes we have completed part 1 and part 2nd. So now today we are going to start part 3. So today we are discuss about what is respiration, how many types of respiration, that is aerobic respiration, anaerobic respiration and human respiratory system. And student, next topic, mechanism of breathing, that is inhalation or exhalation. There are two kind of breathing, that is inhalation and exhalation. Next topic is transportation. So student, we are continue two types of transportation, that is transportation in human and transportation in plant. So transportation in human, that means human circulatory system. Human circulatory system consists of different types of parts, that is blood vessels, lymph, heart and its working. So student, यहाँ से heart and its working, it is most time topic for your exam point of view. And second transportation, that is transportation in plants, that is xylem and phloem. So difference between xylem and phloem, it is most time topic for your exam point of view. And in lecture number 4 we have discussed excretion system in human being and excretion in plants. Okay, so we are going to start. Respiration is the process by which a living organism utilize the food with the help of oxygen and carbon dioxide to get energy is called respiration. So student, respiration का मीनिंग ये होता है, यह एक प्रोसेस होती है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से यूटिलाइज करके एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है. इस पूरी होल प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन आर दोज रेस्पिरेशन which is happen in the presence of oxygen, and anaerobic respiration, that means it is happen with absence of oxygen. So now discuss in detail aerobic respiration and anaerobic respiration. So student, this is the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration take place in the presence of oxygen, anaerobic take place in the absence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंप्लीट होता है. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म. तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हैपन होता है, मीन्स वहाँ पे पाया जाता है. एंड साइटोप्लाज्म में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो लास्ट में जो प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड एनारोबिक में जो एनर्जी का अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. स्टूडेंट, आप एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखिएगा, ग्लूकोज प्लस पायरुवेट, तो फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देन जो एनर्जी होती है वो मोर अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो ग्लूकोज एथेनॉल और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी को रिलीज करता है. एंड जब हम मसल सेल्स की बात करते हैं तो जो ग्लूकोज है पायरुवेट से रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड बना देता है एंड एनर्जी को रिलीज करता है. सो स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड anaerobic respiration.
Now student, next topic is human respiratory system. So student, this is a human respiratory system जो आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं. Human respiratory system consists various parts like nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles and alveoli. So these are the 7 to 8 parts of human respiratory system. So स्टूडेंट, नेजल कैविटी आप देख रहे हैं जहाँ से हम ऑक्सीजन को इनहेरिट करते हैं, जहाँ से हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन होती है, दिस इज नेजल कैविटी. एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्स एंड नेक्स्ट लैरिंक्स एंड ब्रॉन्चीज, ट्रैचिया, लंग्स. आप स्टूडेंट डायग्राम में देख रहे हैं सबसे नीचे वाला पोर्शन को हम डायफ्राम बोलते हैं. ओके एंड जो छोटी छोटी जो पार्ट्स दिख रहे हैं उसको हम ब्रांचेस बोलते हैं, जो कि ब्रांच के फॉर्म में होता है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म. सो स्टूडेंट, आप ब्रीदिंग के बारे में जानते हो, दैट मीन्स सांस लेना और सांस छोड़ना. द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द डायफ्रेम एंड इंटरकॉस्टैलिस मसल्स. जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल्स जो मसल्स होती हैं उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है. फर्स्ट वन इज व्हेन द डायफ्राम मूव डाउन द लंग्स एक्सपांड द एयर इज इनहेल्ड. दैट मीन्स जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होते हैं, जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तब हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं. इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं. एंड द डायफ्राम मूव अप, जब डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लंग्स सिकुड़ जाते हैं. देन इसके बाद हम एयर को रिलीज कर पाते हैं. एयर दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर पाते हैं. सो स्टूडेंट, ब्रीदिंग मैकेनिज्म आर टू टाइप्स, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. Now we discuss what is the difference between inhalation and exhalation. Inhalation, diaphragm contract and flatten. That means inhalation में diaphragm move down होते हैं, मतलब नीचे की ओर जाते हैं. And exhalation, diaphragm relax and become dun shape. That means कि diaphragm जब ऊपर की तरफ move करते हैं तो exhalation की process डन होती है. एंड इनहेलेशन, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटीज इंक्रीज. जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है जो चेस्ट का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, जबकि एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है. एंड इनहेलेशन प्रोसेस लंग्स एक्सपांड, मतलब जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में जो लंग्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में आ जाते हैं. इनहालेशन, एयर फ्लो इनटू द लंग्स. इनहालेशन में जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स तक पहुंचती है. एंड एक्सहेलेशन में लंग्स से जो एयर बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, उस प्रोसेस का नेम एक्सहेलेशन है. तो स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख रहे हैं जब हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ऊपर की तरह मूव हो जाते हैं, जबकि रिप्स डायफ्राम का मतलब है मूव अप होना और मूव डाउन होना. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन. Transportation is the process by which food, oxygen, water and waste product are carried from one part of the body to the other part of the body is called transportation. Transportation यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड जो वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में रहता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. नाउ स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. सो स्टूडेंट, आप ह्यूमन बीइंग जानते ही हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल को सप्लाई करना वन पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. तो ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड करता है. आप डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, इसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, बीन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड blood platelets, lymph and heart. These are the parts of circulatory system. The main transportation system in human being is circulatory system.
It consists various parts like blood vessels, veins, arteries, capillaries, platelets and limb and heart. स्टूडेंट आप डायग्राम में देखिएगा जो पार्ट्स हैं उसमें ब्लड इज मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स दैट इज 3 टाइप्स, आर्टरीज, veins एंड ब्लड कैपिलरीज ओके, जो ब्लड को ट्रांसफ़र कराने के लिए हेल्पफुल होती हैं. लिम्फ होता है, लिम्फ इज अ फ्लूइड एंड ह्यूमन हार्ट is the blood pumping organs. Okay, so student, this is human circulatory system. blood vessels, lymph, human heart को हम डिटेल में पढ़ेंगे. So student, we have discussed parts of human circulatory system in detail. So blood is a first part, means blood is a connective tissues. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है. इट ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल इन होल बॉडी. ब्लड की हेल्प से ही हम फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर कर पाते हैं. इट कंसिस्ट प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. जो ब्लड के अंदर के जो 4 पार्ट्स हैं उनमें जो मेन है वो प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स. सो प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट फूड. जो फूड को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मा होता है. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेस मटेरियल ऑल्सो ट्रांसफर बाय प्लाज्मा. सेकेंड वन इज RBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट प्योर ऑक्सीजन. जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में जो प्योर ऑक्सीजन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. WBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में जो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, मीन्स माइक्रोब्स हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उनको मारते हैं, देन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एंड लास्ट वन इज ब्लड प्लेटलेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरीज. जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और हमारी बॉडी में जो ब्लड का लॉस हो रहा है उसको ड्यूरिंग इंजरीज के टाइम जब हमारी बॉडी में से ब्लड का लॉस हो रहा है तब ये ब्लड प्लेटलेट्स उसको रोकने का काम करती हैं. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड वेसल्स. दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड वेसल्स कैरीड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं. ब्लड वेसल्स आर 3 टाइप्स दैट इज आर्टरीज, veins एंड कैपिलरीज. दैट मीन्स ये जो 3 टाइप की वेसल्स होते हैं जिसमें आर्टरीज, veins एंड कैपिलरीज. व्हाट इज आर्टरीज? कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो आर्टरीज का काम है वो जो प्योर ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से लेके सारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम आर्टरीज का होता है. एंड veins कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. जो veins का काम है जो हमारी बॉडी में इम्प्योर और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारे पार्ट से लेके हार्ट के लिए ट्रांसफर कर देता है. थर्ड वन इज कैपिलरीज. कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड veins टूगेदर. जो कैपिलरीज होती है वो एक कनेक्शन प्रोवाइड कराती है आर्टरीज और veins में. द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, CO2 etc बिटवीन द ब्लड एंड सेल टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज. मीन्स ब्लड और सेल के बीच में फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैपिलरीज की होती हैं. थर्ड पार्ट दैट इज लिम्फ. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेल्युलर स्पेस. जो लिम्फ होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा. ये प्लाज्मा से बना हुआ होता है. ओके, लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज विच फॉर्म्स लिम्फ वेसल्स. लिम्फ वेसल्स कहाँ से कैरी होती है? लिम्फेटिक कैपिलरीज से. एंड ज्वाइन इनटू लार्ज veins और वो जाके veins में मिल जाती हैं. लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन्स एक्सिस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. जो लिम्फ होता है, जो डाइजेस्टेड जो फैट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इट कंटेन्स लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. लिम्फ का काम, लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स होता है जो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल जर्म्स एंड माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ह्यूमन हार्ट. इट इज मोस्ट IMP पार्ट
important part of circulatory system, that is human heart. It is a muscular organ. Human heart एक muscular organ होता है which pump blood to all parts of the body, जो blood को pumping करने के लिए helpful होता है. It has 4 chambers. स्टूडेंट आप डायग्राम में देख रहे हैं इसमें 4 chambers होते हैं. The upper chambers are called atria and lower chambers are called ventricles. जो बीच का जो center portion है उसको हम चैम्बर्स बोलते हैं. अपर पार्ट्स के चैम्बर्स को हम एट्रिया बोलते हैं, लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. द लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टम. एक जो सेप्टम होता है उससे लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स सेपरेट होते हैं. इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारे प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट करता है और मिक्स होने से बचाता है. तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम ह्यूमन हार्ट की वर्किंग को समझेंगे. स्टूडेंट दिस इज अ ह्यूमन हार्ट वर्किंग डायग्राम. सो स्टूडेंट आप देख रहे हो एक लेफ्ट पोर्शन होता है एंड राइट पोर्शन होता है. तो स्टूडेंट इसमें चैम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं. ऊपर वाले पार्ट्स को एट्रिया एंड नीचे वाले पार्ट्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं और उसके बाद किडनी में ये एडजस्ट हो जाते हैं. तो स्टूडेंट आप देखिए व्हाट इज द वर्किंग ऑफ human heart. When the left atrium relax, oxygenated blood from the lungs flow into the through the pulmonary veins. जब लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रुका हुआ होता है, देन जब वो फ्लो होता है किसके थ्रू फ्लो होता है, वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू. व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स जब वो वीन्स सिकुड़ जाती हैं, द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड, तो जो वेंट्रिकल्स वाला नीचे वाला पोर्शन है वो एक्सपांड हो जाता है एंड द ब्लड फ्लो इनटू इट, और वो वीन्स से वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो हो जाता है. देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप आउट थ्रू द एरिटिया टू आर्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंपिंग करना स्टार्ट कर देता है और एट्रिया में वो पहुंच जाता है. आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द राइट एट्रियम. एंड जब ये वाला पोर्शन जब कंप्लीट हो जाता है, जो ब्लड होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में फिर से वेना कैवा के फॉर्म से पहुंच जाता है. व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम सिकुड़ने लगता है तब राइट वेंट्रिकल एक्सपांड होती है और ब्लड को फिर से फ्लो होने के लिए परमिशन दे देती है. देन द राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट वेंट्रिकल सिकुड़ने लगती है तो ब्लड लंग्स की तरफ पंपिंग करने लगता है पल्मोनरी आर्टरीज के हेल्प से. इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, जब लंग्स CO2 को रिमूव करता है एंड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, देन the oxygenated blood enter into the left atrium and this process is repeated. Okay, so student इस तरीके से हमारा ह्यूमन हार्ट वर्किंग करता है. जो प्योर ऑक्सीजन होता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं. ओके, एंड जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको हम डीऑक्सीजनेट बोलते हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. जब ये प्रोसेस एक साइकिल में 2 and 3 टाइम्स होती है तो हम उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. सो स्टूडेंट आई होप आपको ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन हार्ट की वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सो स्टूडेंट इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग and now we discuss transportation in plants. In plants, transportation of material like food, water and minerals take place through conducting tissues called xylem and phloem. जो plants में transportation होता है वो 2 tissues के working पर depend करता है, that is xylem and phloem. तो xylem and phloem 2 connective and vascular tissues होते हैं जो food, water and minerals को supply करने का काम करते हैं. First one is xylem. Xylem is responsible for transport water and minerals from the root to all parts of the plant. जो xylem होता है वो water and minerals को जो plants का जो root portion होता है वहाँ से plants के सारे parts के लिए transfer करता है. It consists of xylem basils and trancheads. मीन्स xylem में basils होती हैं, xylem fiber होता है, trancheads होते हैं जो हेल्प करते हैं जाइलम के लिए वाटर एंड मिनरल्स को सप्लाई करने में. वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट बाय द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की प्रोसेस के कारण
वाटर एंड मिनरल्स रूट्स में एंटर करते हैं। देन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन द सेक्शन फोर्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट। जो सेक्शन फोर्स होता है वो अपवर्ड मूवमेंट के कारण वाटर एंड मिनरल्स को रूट से प्लांट्स के चारों पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, मीन्स लीव्स तक उसका जो वाटर होता है उसको पहुंचाने का काम जाइलम करता है। नेक्स्ट टिश्यूज है फ्लोएम। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फ्लोएम होता है वो फूड मीन्स फूड कहाँ बनता है प्लांट्स में, लीव्स में, क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा पाया जाता है। तो फ्लोएम का काम है लीव्स से उस फूड को ट्रांसफर करना अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के सभी पार्ट्स में फूड को सप्लाई करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल। ओके, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में मोस्टली 2 से 3 पार्ट्स मोस्ट टाइम पे होते हैं, दैट इज सीप ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर। फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो एटीपी मीन्स जो एनर्जी जनरेट होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर द फ्लोएम एंड हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। जब ऑस्मोटिक की प्रोसेस या ऑस्मोटिक प्रेशर जब प्लांट्स पर लगता है तो उसमें जो प्रेशर होता है वो फूड को ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो स्टूडेंट आप डायग्राम में देख रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम की वर्किंग को। So student, this is a third part of this chapter will be finished. Now we remaining topic, that is excretion system, we have discussed in next video. Thank you so much.